اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والحیبۃ العسکری والغیبۃ الالہ القائم بامر اللہ بلندتر صلوات پڑھیے گا۔ اس دنیا میں آنے کا ہمارا ہدف ہے اپنے رب سے نزدیکی، یعنی کہ قرب الہی، اور اس قرب الہی کو حاصل کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہ مجالس ابا عبداللہ الحسین ہے کہ جس مجلس میں ہم آتے ہیں، یہ جو ہم آنسو بہاتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، در حقیقت یہ ایسی عبادت ہے کہ ثواب تو بے شمار، اور جو شیطان ہمارے پیچھے لگا پڑا ہے، قرآن میں جیسے بیان ہوا کہ شیطان آپ کو سامنے سے بھی ورغلاتا ہے، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ جب ہم عزاداری میں آتے ہیں، ہم علی کا نام لیتے ہیں، ہم حسین کے نام پہ ماتم کرتے ہیں، ہم اشک بہاتے ہیں، در حقیقت ہم اس شیطان کی اس کام سے کمر کو توڑ دیتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اس فرش عزا کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو ہم کبھی بھی اس مجلس عزا کو ترک نہ کریں اور اس کے احترام کو ترک نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ فاطمہ زہرا کدھر بیٹھی ہوئی ہوں گی، ہم نہیں جانتے کہ مولا حسین اس مجلس میں کہاں ہوں گے۔ وہ ضرور ہستیاں آتی ہیں جن کے نام پر ہم مجلس سے کر رہے ہیں۔ تو ہزارہ محترم، جیسے کہ آج برآمدگی ہوگی جھولے کی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جھولے پر پامال مت کیجیے گا، سب کو جگہ دے، موقع دے، آپ زیارت کریں اور پیچھے کھڑے ہو کے دعا مانگیں۔ یہ ہر جگہ موجود ہے ہستیاں، یہ آپ کی ہر دعا سنے گی۔ اسی عزاداری کو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے علماء کہ جن کی عالم برزخ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جو اس ملکوت کو دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم وہاں کی سلطنت ابا عبداللہ الحسین دیکھ لو تو تم حیران ہو جاؤ گے، اور وہ فضیلت کی جس کے لیے رشک کرتے ہیں فرشتے کی کاش ہم انسانوں میں سے ہوتے اور ہم اس فرش عزا پر آتے، تو تم کبھی بھی اس فرش عزا کو چھوڑنا پسند نہیں کرو گے، اور اس کی اہمیت کو بھی تم ہمیشہ اپنے آپ سے کراؤ گے کہ مجھے اہمیت کر رکھنی ہے، کیونکہ یہاں پر خدا کی نظریں ہیں، یہاں پر امام کی نظریں ہیں، میرا مولا مہدی مسلسل آپ لوگوں کے اوپر دیکھ رہا ہے، لیکن جب ہم یہاں بے احترامی کرتے ہیں تو یقین جانے میرے مولا کا دل ضرور دکھتا ہوگا۔ ہم در حقیقت یہاں پر ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، دھکے بازی کرتے ہیں، یہاں پر اگر احترام نہیں کرتے تو ہم اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم دعاؤں میں مسلسل کہتے ہیں ظلمت نفسی، ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ جب آپ کے پاس موقع آ رہا ہے تو کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ مسلسل آپ کو بتایا جاتا ہے، لیکن عموماً آپ خود دیکھتے ہوں گے جب نیاز بانٹی جاتی ہے آخر میں تو کیسی دھکم پہ ہوتی ہے، کیا اس وقت یہ چیزیں آپ کو یاد نہیں ہوتی؟ یہی ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، یہی ہے کہ ہم اپنے نفس پہ ظلم نہ کریں۔ قرآن کا یہ نعرہ ہے کہ آپ اپنے ہر عمل کے جواب دہ ہوں گے۔ یہاں پہ جس میں اگر کسی ایک کو دھکا دے کر اس کے ہاتھ سے دھکا لگا یا اس کے ایکشن سے کسی کو بھی تکلیف پہنچی تو اس کے جواب دہ آپ ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا کہ جس کو برزخ کی دنیا کہا جاتا ہے، یا قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تو ایک ایک عمل کا آپ کے حساب کتاب ہوگا، آپ کی نیکیاں بھی شمار کی جائیں گی، تو جو حرکتیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں وہ بھی شمار ہوگی۔ اگر غلطی سے دھکا لگ جاتا ہے تو فوراً معافی مانگیے، پیچھے ہو جائیے، اس کو موقع دے، کیا خبر اس کی مراد، اس کی جو دعا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ دعا ہو، زیادہ ایسی دعا ہو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ خاتون وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ بس ایک دوسرے کو موقع دے، ہر بندہ دوسرے کے بارے میں سوچے، اپنے سے پہلے سوچے کیا خبر یہ بیچاری جو اتنا رو رہی ہے یہ کس نیت سے مولا کے پاس آئی ہے، اور وہ جو رونے والی خاتون ہے وہ بھی دوسرے کا خیال رکھے، یہ نہیں کہ ہر کوئی سوچے کہ بس دوسرے میرا خیال رکھیں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو شیان ابا عبداللہ الحسین ثابت کر کے دکھانا ہے۔ تو اس مجلس میں یا کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں، احترام جو اس فرش عزا کا ہے اس کو آخر تک ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ نہیں کہ بس شروع میں جب مجلس سنی جا رہی ہے، لیکن جہاں ماتم شروع ہوا
जहाँ पर शबी बरामद होती है तो वहाँ हम अपना ज़ब्त खो जाते हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। अपनी अहमियत को समझिए। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात में से बनाया है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो परिंदे हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे लिए खल्क हुई है। हत्ता के फरिश्ते भी। कैसे? आप सब जानते हैं कि हमारे सीधे हाथ पे भी एक फरिश्ता है, हमारे दाएं हाथ पे भी एक फरिश्ता है जो हमारे आमाल को लिख रहा है। इससे बड़ी चीज क्या होगी कि फरिश्ते हमारे कातिल हैं। तो अल्लाह ने फरिश्तों को भी हमारे लिए खल्क किया है। दुनिया की जितनी किस्में हैं, अनवा व इकसाम की नेमतें हैं, वो सब हमारे लिए है ताकि हम उनको खाएं पिएं, उसका इस्तेमाल करें। खुदा ने सवारियां बनाई हैं हमारे लिए ताकि हम इसको इस्तेमाल करके कुर्बे इलाही तक पहुंच जाएं। अपनी जो रूह है, जैसे हम अपने घरों को साफ करते हैं, अपने घरों की हमेशा सफाई करते हैं, मुहर्रम आने वाला है, ईद आने वाली है, आम दिनों में भी डस्टिंग करते फिरते हैं, ऐसे ही हमें चाहिए कि हम अपनी रूह की भी डस्टिंग करें। हम देखें जो गट चढ़ जाती है, जाहिर बात है दुनिया में निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं असर हो जाता है इंसान पर, लेकिन जब इंसान इस दर से मुंसलिक रहेगा तो उसके ऊपर हसद नहीं चढ़ सकता, उसके ऊपर कितनी भी बुराइयां हैं उनका गुबार नहीं चढ़ सकता है। और रसूल अकरम के जो रहमतुल लिल आलमीन है, हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीसों में और आइम्मा मासूमीन की हदीसों में कुछ ऐसे आमाल हमारे लिए बताए गए हैं कि अगर हम चाहें तो अपने आमाल को वजनी कर सकते हैं, कि जिसमें सबसे पहली चीज जिसके बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यही चीज कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका दुरूद, वमा अरसला फिल मीजान, के मीजान में कोई भी चीज संगीन नहीं होती सिवाय मन सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सलावात इतनी संगीन होती है हत्ता कि इतने थोड़े से लोग सलावात पढ़ रहे हैं और इतना मजमा है माशाल्लाह। एक बुलंदतर सलावात पढ़ के दिखाइए। अजीजा, इसका जो सवाब है वो फरिश्ते भी नहीं गिन सकते। वो फरिश्ते कि जो बारिश के कतरों को भी गिन लेते हैं। तो रसूल अल्लाह ने पूछा एक ऐसे फरिश्ते से कि जिसको मामूर किया था अल्लाह ने कि क्या तुम बारिश के जितने भी बारिश का एक एक जो कतरा गिरता है वो गिनता है कि कितने गिर रहे हैं। लेकिन उससे जब पूछा गया कि कोई ऐसी चीज है कि जिसका तुम हिसाब नहीं लगा सकते, तो वो कहता है कि जब कोई मोमिन अपने मुंह से हुजूर पर दुरूद पढ़ता है तो उसका हिसाब मैं नहीं लगा सकता, यानी इतना सवाब है। इस वक्त आपको मौका मिलता है, आप घरों से निकलते हैं, मुसलसल रास्ते में वेट कीजिए। एक तस्बीह पढ़ने में कितना वक्त लगता है? ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत दिक्कत के साथ आपने पढ़ा तो 5 मिनट, हत्ता कि हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं तस्बीह। और खुद हुजूर खुद ये बात फरमाते हैं कि जब मैं मीजान कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा मुश्किल जगह है कि जहां पर हमें हिसाब किताब देना होगा, उस जगह को मीजान कहते हैं कि जहां पर हमें बताया जाता है कि ये बंदा अब जहन्नम में जाएगा या ये बंदा अब जन्नत में जाएगा। उस जगह पर मेरे हुजूर खड़े होते हैं, हजरत मोहम्मद खड़े होते हैं और ये फरमाते हैं कि जिसका भी मीजान हल्का होता है तो हुजूर वो जितनी भी सलावात हमने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़े होते हैं वो समेट के सारी सही लेकर आते हैं और हमारी उस पलड़े में डाल देते हैं कि जो हल्का होता है, जो नेकियों का पलड़ा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बुराइयां इतनी बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे आमाल जो नेकियों का पलड़ा है वो हल्का हो चुका होता है। तो हुजूर क्या करते हैं कि जो सलवात हम पढ़ते हैं उसको लाकर उधर रख देते हैं। जैसे कि माँ हमेशा परेशान होती है ना, जब बच्चे का इम्तहान होता है तो माएँ कितना परेशान होती हैं जब तक बच्चा वापस नहीं आ जाता। ऐसे वो रहमतुल लिल आलमीन हमारे लिए उस मीजान में खड़ा होगा
और वो रसूल अल्लाह कहेंगे कि जब तक मैं इसके सारा सवाब इसके पलड़े में ना डाल दूं तब तक हुजूर वहां से हिलते नहीं है। और वो ये हर बंदे के लिए करते हैं, ऐसा नहीं किसी एक खास के लिए करेंगे, नहीं, जिसका दुरूद का एक सवाब मौजूद होगा वो एक जगह जमा होता जा रहा है। जितनी दुरूद हम पढ़ते हैं, हम घर में पढ़ेंगे, मजलिसों में पढ़ेंगे, इसलिए कहा जाता है बुलंद आवाज से पढ़िए, क्योंकि यही बुलंद आवाज आपकी गवाहियां देंगी कि ये बंदा मुझे हर जगह पे दुरूद पढ़ता था। हुजूर का जहां नाम सुने दुरूद पढ़िए, हत्ता कि अगर कोई शख्स हुजूर के नाम पर दुरूद नहीं पढ़ता तो रिवायात में है कि रसूल अल्लाह उससे नाराज भी हो जाते हैं। नाराए सलवात। हम कितना लोगों से बातें करते हैं, लेकिन अगर एक दिन में एक तस्बीह डालें जिसमें 100 दफा पढ़ा जाता है दुरूद, तो इसको अपनी जिंदगियों में जरूर शामिल करें। और जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, जिस मेहदी का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए दुरूद पढ़े कि मौला मैं इसलिए दुरूद पढ़ रहा हूँ कि मेरे इमाम का जल्द जरूर हूँ। ये वही इमाम है कि जो बयान किया जाता है रिवायात में कि हर जुमेरात को करबला के मनाजिर देखता है। ये वो इमाम है कि जो खून हुसैन का बदला लेने के लिए तड़प रहा है। ये वो इमाम है कि जो उस जलते हुए दरवाजे का बदला लेने के लिए तड़प रहा है। ये वो इमाम है कि जो टूटी हुई पसलियों के बदले लेने के लिए तड़प रहा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, रिवायात में है, उलमा कहते हैं कि इमाम इस वक्त करबला में पता नहीं कहाँ मौजूद होंगे। खुदा हम सबको ज़ियारत पे बुलाए, लेकिन जब आप करबला जाएं तो बहुत एहतराम के साथ जाया करें। क्या खबर किस कोने में मेरा मौला खड़ा हो। और करबला ही की बात करें तो करबला में हमें नहीं मालूम कि मौला हुसैन किस जगह पर बैठे थे। वो कौन सा मकाम था जहाँ मौला ने अली असगर को दफनाया होगा। वो कौन सा मकाम होगा जहाँ मौला बैठे होंगे और किसी ने पत्थर मारा होगा। अरे वो कौन सा मकाम होगा कि जहाँ सज्जाद की मौत की शिद्दत से गर्दन जख्मी हो गई होगी। वो कौन सा बाजार का मकाम होगा जहाँ सर नेज़े पर होंगे। ये तमाम वो रास्ते हैं कि जब आप जाएंगे देखेंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि मौला किन किन रास्तों से गुजरे हैं। कुछ की निशानदेही तो होती है, लेकिन बहुत सी बहरहाल जगहें हैं जहाँ बीबियां खड़ी होंगी, उनको लोगों ने पत्थर मारे होंगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लामा फातिमी लियाई के जुमला कहते हैं कि जनाब फातिमा का जब दरवाजा गिराया था तो अगर वो लईन उस पर ही तमाम कर देते तो शायद हम ज्यादा कुछ ना कहते, लेकिन वो ये जानते कि दरवाजे के पीछे ज़हरा खड़ी हुई है। अरे उन लईनों ने उस बीबी का पास भी ना रखा और मेरी बीबी को दरवाजे और दर के बीच में दबोच दिया। और खबर है जनाब फातिमा आखिर में किसका नाम ले रही थी। वो उस दर्द के आलम में मेहदी को पुकार रही थी, या मेहदी। इमाम मेहदी उसी का बदला लेने आना जा रहे हैं। हमने उम्मत बन के दिखाना है। अरे इस करबला के खून का बदला लेने मेरा मेहदी आएगा। बदलाने मोहतरम, आखिरी जुमला इमाम हुसैन कहते हैं कुछ जगह ऐसी थी जहाँ मेरे लिए बर्दाश्त करना सख्त था। एक वो मंजिल कि जब जनाब कासिम ने आवाज दी अम्मू जान, लेकिन जब तक हुसैन आते इधर के घोड़े उधर दौड़ाए गए, उधर के घोड़े इधर दौड़ाए गए। अरे वो 11 साल का नौजवान टुकड़े टुकड़े हो गया। अरे सोचो किसी का चच्चा है, अपने भाई के बेटे को देखे, एक टुकड़ा उस तरफ है, एक टुकड़ा उस तरफ है। न जाने मौला ने कैसे गठरी में एक एक टुकड़ा बांधा होगा। अरे कैसे गठरी उठाई होगी, कैसे खैमों की तरफ गए होंगे। अरे न जाने माँ के दिल का क्या हाल हुआ होगा कासिम की गठरी देखकर। खुदाया मेरे